Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23421050 and 23310464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। रोज की तरह आज भी हम देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। श्रोताओं, आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में हम आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23421050 और हमारा तीसरा नंबर है 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले STD कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ राजीव रंजन। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। India is advancing towards women-led development, with the power of Indian women now being acknowledged globally, says Prime Minister Narendra Modi. After 3 weeks of decline, domestic markets register biggest weekly gain in 2025. And US markets rise after Fed chairman says economy is in a good shape. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश महिला आधारित विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारतीय महिलाओं की शक्ति की पहचान पूरी दुनिया में बन रही है। 3 सप्ताह की गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजारों में वर्ष 2025 की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई और फेड चेयरमैन के इस बयान के बाद कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, अमेरिका के बाजारों में तेजी दिखाई दी। Prime Minister Narendra Modi today emphasized that the government is dedicated to the empowerment of women. Speaking at the Lakhpati Diti Sammelan at Navasari in Gujarat, on the occasion of International Women's Day today, Mr. Modi emphasized that India is advancing towards women-led development, with the government placing utmost importance to dignity and well-being of women at every step. Prime Minister Modi stated that the banner of women empowerment is soaring across all sectors of the society, with the power of Indian women now acknowledged globally. He praised the role of self-help groups in the nation's development and announced that the government is aiming to create 3 crore Lakhpati Didis over the next 5 years as part of the ongoing efforts to empower women. Mr. Modi further noted that women's participation across various sectors has been a remarkable increase in recent years. He commended Gujarat's cooperative model, particularly the White Revolution and women-led water committees, which have been pivotal in the state's economic and social development. During the Lakhpati Didi Sammelan, the Prime Minister also disbursed 450 crore rupees in financial assistance to over 2.5 lakh women from over 25,000 self-help groups.
Mr. Modi also felicitated 5 Lakhpati Didis with Lakhpati Didi certificates. In Gujarat, nearly 1.5 lakh women have now achieved an annual income of 1 lakh rupees or more, earning the title of Lakhpati Didis. और इस बीच मुंबई से हमारे श्रोता किशोर हमसे जुड़ चुके हैं। किशोर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा आवाज सुनाई देता है आपको? जी, आप सवाल पूछे। हाँ, मुझे आप क्लैरिफाई करो, जो अभी नवा बजट निकला है इनकम टैक्स के बारे में, तो बोलते हैं भाई 12 लाख तक इनकम टैक्स जो भी होगा कुछ टैक्स नहीं भरना है। तो इनकम टैक्स के वेबसाइट में कैसा लिखा पड़ा है 4 लाख तक जीरो टैक्स, फिर स्लैब चालू है 4 से 8 5%, 8 से 12 10% और 24 लाख से 30%। तो उसमें क्या रियलिटी, क्या सच क्या है? जी किशोर जी, आप सैलरीड हैं या आप अपना बिजनेस किसी तरह का करते हैं? नहीं, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में ये अगले वित्त वर्ष से लागू होगा ना, ये अभी देख रहे हैं इस वजह से हो सकता है। नहीं, उसमें बहुत सीधी सी बात ये है कि कर मुक्त सीमा जो टैक्स फ्री लिमिट है वो 4 लाख तक ही है, लेकिन 12 लाख तक की यदि आपकी आमदनी है और बल्कि उससे थोड़ा आगे भी जाते हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो उसमें और 75,000 रुपये आप स्टैंडर्ड डिडक्शन के जोड़ दीजिए, और सामान्य व्यक्ति भी 1270 तक कहें वहां तक उसके लिए टैक्स की काफी रियायतें हैं। अगर शुद्ध रूप से आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक आती है या उसके अंदर रहती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो एक रिबेट के अंदर होता है जो 87A के तहत वो रिबेट दिया जाता है। इसलिए ये बात सही है कि 4 लाख रुपए से ऊपर जाते ही आपकी टैक्स की काउंटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन 12 लाख तक टोटल टैक्स जो बनता है वो 60,000 रुपए बनता है, और वो 60,000 रुपए की पूरी रिबेट आपको 87A के अंदर मिल जाती है। इसलिए अगर आपकी 12 लाख तक ही आमदनी है तो आपको कोई 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है। Joining us now is Ratnakar from Mumbai. A warm welcome, Ratnakar. हेलो, गुड इवनिंग सर। Good evening. हाँ, मेरा सवाल है, आजकल वो आयात शुल्क इम्पोर्ट ड्यूटी के बारे में जो बोला जाता है और वो बहुत बड़ा उसका इफेक्ट पड़ रहा है मार्केट पर, नहीं तो किधर। तो आयात ड्यूटी अमेरिका लगाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो आयात ड्यूटी क्या है, ये मेरा सवाल है, इम्पोर्ट ड्यूटी। और दूसरा सवाल है कि अभी ये मार्केट 2 दिन में ऊपर चढ़ा था, तो आगे नेक्स्ट वीक में उसका ये कैसी रह सकती? जी देखिए, अगले हफ्ते क्या होगा इसका पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके लिए पूर्वानुमान लगाते भी हैं, लेकिन वो एक निवेशक के नजरिए से बहुत कोई एक समझदारी वाली चीज नहीं होती है कि आप इतने शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम को देखते हुए आप बाजार के बारे में बहुत ज्यादा गेस करें। आपने आयात शुल्क के बारे में पूछा, तो कोई भी देश किसी दूसरे देश से जो सामान उसके यहाँ आता है उस पर ये इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क लगाता है, और वो चीज हर सामान पर अलग अलग हो सकती है। ये शुल्क अलग अलग हो सकता है। हर देश दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को देखते हुए अलग अलग देश के लिए अलग अलग तरीके से भी शुल्क लगा सकता है। हालांकि WTO एक ऐसा विश्व मंच बनाया गया जिसमें कोशिश ये की गई कि ये हर देश के लिए अलग अलग शुल्क कोई लगाए, ये व्यवस्था ना हो, आप एक तरह का यूनिवर्सल लगाएं। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर यह होता है कि 2 देश अपने आपस में इस तरह से समझौते कर लेते हैं जिसमें प्रेफरेंशियल टैरिफ भी लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर मसला ये है कि कोई भी देश आयात शुल्क लगाता है या नहीं लगाता है, वो 2 देशों के बीच का, यानी जिस देश से सामान आ रहा है और जिस देश में सामान आ रहा है, उन देशों के आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। Yogesh from Delhi joins us now. A warm welcome, Yogesh. थैंक यू सो मच। Please ask your question. नमस्कार सभी को। सर, मेरा सवाल ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी स्पेकुलेटिव एसेट है और एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, पर क्या ये चीज गोल्ड के सिलसिले में भी कही जा सकती है? क्योंकि गोल्ड भी एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, फिर भी उसका वैल्यू लगातार बढ़ता हुआ क्यों आ रहा है? और क्या गोल्ड के अलावा डायमंड को भी उतनी ही तवज्जो दी जाती है फाइनेंशियल दृष्टि से? जी देखिए योगेश जी, गोल्ड का अपना एक महत्व है और वो सदियों से है। हीरा भी बहुमूल्य है, लेकिन
उसने इंटरनेशनल ट्रेड में वो स्थिति हासिल नहीं की है जो गोल्ड की है। गोल्ड एक तरह से कहें कि इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी है, वो किसी करेंसी का इक्विवेलेंट हो जाता है, लेकिन क्या वो स्टेटस डायमंड का है? वो स्टेटस नहीं है। और उसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि गोल्ड को बहुत इजीली आप एक्सचेंज कर सकते हैं, और डायमंड की वो स्थिति क्यों नहीं बन पाई, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि सोना एक आम आदमी भी देख करके समझ लेता है कि हाँ ये सोना है, और वो खरा है कितना नहीं है वो सब चीजें आप बगल में किसी सुनार के पास जाकर के देख लेते हैं। लेकिन अगर आप हीरे को उस तरह से देखना चाहें तो शायद वो स्थिति नहीं होगी, आप उतनी आसानी से उसकी कीमत समझ नहीं पाएंगे। और सोने को इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली हुई है। आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा। क्रिप्टो करेंसी, आपके हाथ में सोना है, आपके घर में पीढ़ियों से आ रहा होगा या आप नया भी खरीदते होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ऐसी चीज है जो हाल के वर्षों में उभरी है। भारत का दृष्टिकोण अभी तक ये है कि वो इसे एक करेंसी के रूप में नहीं देखता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे एक वर्चुअल एसेट के रूप में सरकार किसी हद तक स्वीकार करने लगी है। लेकिन क्या इसको हम सोने की तरह एक ट्रेडेबल करेंसी मान सकते हैं? आज की तारीख में नहीं। भारत सरकार इसे सिर्फ इस मायने में एक एसेट स्वीकार कर रही है कि ठीक है, कुछ लोग इसे खरीदते बेचते हैं, उससे उनको मुनाफा भी होता है, मुनाफा हो रहा है तो हमें टैक्स दे करके जाइए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस ट्रेडिंग पर टैक्स दे के जाइए, सिर्फ इतना है। And also gold can be also transacted. जी बिल्कुल, क्योंकि आप ETF है, गोल्ड ETFs हैं, उनमें आप हाँ, लेकिन जिस अर्थ में कह डायमंड में नहीं, जिस अर्थ में ये समझना चाह रहे हैं कि गोल्ड को ये इम्पोर्टेंस क्यों है, तो आपको उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा कि सदियों से सोना क्यों, शुरुआत से ही जब राजा महाराजा सोने के सिक्के ढालते थे वहां से लेकर के आज तक, या रिसेंटली जब हमने ये डॉलर का को एक इंटरनेशनल करेंसी की मान्यता मिलते हुए देखा, तो उसके पीछे भी ये था कि अमेरिका के पास उतना सोना है। हालांकि बाद में वो चीजें बदल गई, अब उसमें हम जाएंगे तो बहुत एकेडमिक हो जाएगा। जी। और कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु साहा जी लाइन पे हैं। अतनु जी नमस्कार, अपना सवाल पूछे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। क्वेश्चन सर। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Female work. We can't hear you clearly. I'm sorry. Our country GDP and world gross domestic. Mr. Saha, we cannot hear you clearly. We cannot comprehend your question. Can you? Could you please call us again? Please call us back so that we can hear you clearly. From Delhi, we are joined in by Ram Narayan. A warm welcome. हेलो। हेलो जी, सवाल पूछें जी। सर मेरे पास फिजिकल रखे हैं शेयर कुछ, और डीमैट नहीं हो रहे, कुछ डीमैट है तो वो बिक नहीं रहे, कैसे बिकेंगे उसका बताएंगे, क्योंकि उसमें लिस्टिंग में नहीं है। डीमैट नहीं हुआ अब आपका? डीमैट भी नहीं हुआ जी। नहीं जी, कुछ शेयर नहीं हुए, कुछ हो रहे हैं और बिक नहीं रहे। जी, अगर ये फिजिकल शेयर्स आपके पास हैं तो सबसे पहले तो आपको उसे डीमैट कराना ही होगा। आज की तारीख में अगर वो कंपनी जिंदा है, कामकाज कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज में अभी भी लिस्टेड है, तो आप उसे डीमैट कराने पर सबसे पहले ध्यान दें। अगर वो कंपनी आज की तारीख में सक्रिय ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, बैड लक, उसमें हम आपके लिए शुभकामनाएं ही दे सकते हैं, उसमें ज्यादा कुछ आशाएं रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहली चीज, आप अपनी पूरी लिस्ट उठा करके देख लीजिए कौन कौन से शेयर आज भी सक्रिय हैं, लिस्टेड हैं, जिनमें ट्रेडिंग हो रही है। उन शेयरों को आप डीमैट करवा लीजिए। उसके लिए आपको किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, वो आपकी पूरी मदद कर देंगे। और उसके बाद जब आप डीमैट फॉर्मेट में उसे अपने खाते में ले आएंगे तो उसके बाद आप उसे बेच करके बाजार में अपने पैसे निकाल सकते हैं। If you have any questions related to business, economy or stock market matters, then give us a call at 2331-4444, 2342-1050 and 2331-0464. We have Rajiv Ranjan, economic journalist, with us to answer your queries. और इस बीच हमारे साथ जयपुर से जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जितेंद्र जी, सवाल पूछिए।
हाँ, ये पूछा था जो अमेरिका ट्रैफिक क्या लगा रहा है ना, ट्रैफिक कोई चीज, वो क्या है? जी राजीव जी, यही सवाल आज मतलब सबके दिमाग में यही जाहिर है। बाजार में चूंकि काफी ज्यादा अनिश्चितता इसको लेकर के बनी हुई है, चिंताएं बनी हुई है, इसलिए लोग इनसे सुन रहे हैं और फिर समझना चाह रहे हैं कि ये चीज क्या है। अभी तक तो इस बारे में कभी बात होती नहीं थी। तो इससे पहले एक श्रोता ने जो पूछा था उसमें मैंने बेसिक चीज रखी कि हाँ, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो जिस देश से सामान आता है और जिस देश में सामान पहुंचता है, तो जो सामान खरीदने वाला देश होता है वो शुल्क लगाता है, उसे हम टैरिफ कहते हैं, उसे हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, आयात शुल्क कहते हैं। तो ये खरीदने वाले देश का अपना अधिकार होता है वो कितना लगाए। लेकिन अब चूंकि अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर इसी बात को लेकर के ट्रंप चुनाव जीत करके आए हैं कि वो देश की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है उसके लिए उन्हें ये समझ में आता है कि अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत सारे देशों के साथ बहुत ज्यादा है। ये व्यापार घाटा अगर वो किसी तरह से अंकुश में ले आए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। ये एक मोटी सी बात उनकी सोच बनी हुई है। लेकिन किसी भी देश के साथ जो उनके द्विपक्षीय संबंध हैं और उसके चलते जो हिस्टोरिकली दो देशों के बीच अमेरिका और किसी दूसरे देश के साथ जिसमें भारत भी शामिल है, उनके जो भी आयात शुल्क पहले से चले आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हिस्टोरिकल कारण है कि वो शुल्क उस लेवल पे क्यों थे। अब वो अचानक आकर के रातों रात स्थितियां बदलना चाहते हैं, कहीं पे वो सफल होंगे, कहीं पे नहीं होंगे, कहीं पे उन्हें भी समझौते करने पड़ेंगे। आज की तारीख में इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वो सारे देशों को अमेरिका के साथ एक निगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहते हैं। सारे टैरिफ को जहां भी उन्हें लगता है कि वो टैरिफ उनके फेवर में नहीं है, वहां पर वो चाहते हैं कि उनके देश से जब दूसरे देश में सामान बेचा जाए तो उस पर टैरिफ कम लगे, और जब वो दूसरे देश से सामान खरीदें तो वो उसे एक धमकी की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये एक बार्गेन की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर आपने हमारे सामान पर टैरिफ कम नहीं किया तो हम आपके सामान पर उसी तरह से टैरिफ लगा देंगे, जिससे आपके लिए अमेरिका में सामान बेचना मुश्किल हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका भी तो बहुत सारा सामान खरीदता है और जिसकी उसको जरूरत है। तभी तो अमरीश जी आप देखिए, पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजार एक दिन लाल एक दिन हरा। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें किधर जा रही हैं, और खुद अमेरिका चिंतित हो गया है कि इस ट्रंप जो भी करना चाह रहे हैं या जो जिस दिशा में उनकी चीजें जा रही हैं उससे कहीं खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान न हो जाए। ये चिंता वहां पर ज्यादा बनने लगी है। There could be inflationary pressure. इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकता है, और बहुत सारे अब जैसे वहाँ की एक बड़ी आईटी कंपनी ने कहा कि हमारे लिए घाटा बढ़ जाएगा, या इस तरह के टैरिफ अगर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो हमारे ऊपर इतना हिट आएगा। अब सब कोई ये जोड़ रहा है कि अगर इस तरह के टैरिफ वार बन गई स्थिति तो किसी अमेरिकी कंपनी के लिए बाहर सामान बेचना मुश्किल हो जाएगा, किसी अमेरिकी कंपनी को उसके इंपोर्ट्स पे या जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स हैं, उस पे काफी ज्यादा कॉस्ट बर्डन सहना पड़ जाएगा। अभी काफी अनसर्टेनिटी है, और इस अनसर्टेनिटी को अब खुद अमेरिकी बाजार जो है वो बेयर नहीं कर पा रहा है। और दिल्ली से हमारे श्रोता राजेश लाइन पे हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार सर जी, सवाल पूछिए। सर मैं 5-4 फंड हाउस के बारे में पूछना चाहता था, ये कंटिन्यू रखूं या इनको बंद करूं? राजेश जी, फंड्स के बारे में अगर आपको कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो हमारे कल के कार्यक्रम में पूछिए। रविवार को हमारा जो कार्यक्रम है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ही होता है। Rakesh Kumar from Delhi joins us now. Rakesh, a warm welcome. Yeah, good evening. This is Rakesh Mohan actually. I have a question regarding this uncertainty and volatility because of the gold prices have gone up. Yeah. It's almost 87,000 at this moment. So yes, historically, when things settle down, how much correction is expected? I mean, how much it can go down? Any expectation? जी राकेश जी, जब तक इंटरनेशनल वोलेटिलिटी है या अनसर्टेनिटी है, जिसके बारे में अभी इस प्रोग्राम में हम लगभग सारे सवाल उसी को लेकर के आ रहे हैं, तब तक आप ये मान सकते हैं कि हाँ, गोल्ड प्राइसेज एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद एक करेक्शन आएगा जिसके बारे में आपका अंदाजा सही है, और वो करेक्शन कितना बड़ा हो सकता है, किन लेवल्स पर जाने के बाद आएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पे, और खास करके अमेरिकी सरकार आगे किस तरह की नीतियां लेकर के चलने वाली है उसके ऊपर। एक तरफ जहां ट्रंप की नीतियां जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसको घटाने वाली हैं, और ये बात
कहीं एक हद तक कहें कि जो गोल्ड का जो एक रिस्क प्रीमियम होता है या उसे एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट के रूप में ले जाता है, वो सेफ्टी प्रीमियम जो है उसको कम करता है। दूसरी तरफ चूंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ट्रम्प साहब के बयानों ने खास करके बढ़ा दिया। अभी नीतियां उनकी क्या है ये तो समझना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके बयानों ने ही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ाई है, उसका एक असर अभी गोल्ड प्राइसेस पे है। करेक्शन बाद में आएगा। तो राजीव जी, यहाँ पे हम जान लेते हैं कि शेयर बाजारों का क्या हाल रहा इस सप्ताह। घरेलू शेयर बाजारों में 3 सप्ताह से चल रही गिरावट के बाद इस हफ्ते 2025 की सबसे बड़ी साप्ताहिक तेजी दर्ज की गई। अमेरिका की व्यापार नीति में मौजूदा अनिश्चितता के चलते दुनिया के बाजारों में जारी उथल पुथल के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों ने उत्साहजनक प्रदर्शन किया। कल समाप्त हुए सप्ताह में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1134 अंक यानी 1.5% की बढ़त के साथ 74,333 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 428 अंक यानी 1.9% की बढ़ोतरी के साथ 22,553 अंकों पर आ गया। व्यापक बाजार में बंबई शेयर बाजार के मिड कैप सूचकांक में 3.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 6% का उछाल दर्ज किया गया। विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह रुपया 63 पैसे मजबूत हुआ। $1 की कीमत 86 रुपए 88 पैसे दर्ज की गई। We have S. Chatterjee from Kolkata with us. Please ask your question. Hello, can you hear me? Yes, I can. Please go ahead and ask your question. Well, good evening to Market 113. Good evening. I have a question that this is regarding an aviation company which is gone for liquidation recently. Now, I have a couple of shares there. Now, what is the fate of when this kind of thing happens, a company goes for liquidity, what happens with the share which somebody is holding? That's all. That is my question. Thank you very much. If a company has gone into liquidation, what will be the fate of those who own the shares? एक प्रारंभिक नजर में तो यही कहा जा सकता है कि हाँ, वहां पर शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं, लेकिन वो केस टू केस डिपेंड करता है। ये जिस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में समझना होगा, और कंपनी स्पेसिफिक हम यहाँ पे बात कर नहीं सकते जी। और थाने से हमारे श्रोता सुभाष लाइन पे हैं। सुभाष जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मार्केट मेंटर टीम एंड गुड इवनिंग टू द एक्सपर्ट सर। सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन. At the beginning of the program, one person asked about income tax rates, no? Yeah. Whether these rates of 0% up to 4 lakh, they are applicable to persons for following old tax regime also? ओके, ये समझना चाह रहे हैं शायद कि 4 लाख तक जो जीरो टैक्स वाली लिमिट है, नील टैक्स रेट वाली रेजिम है, क्या ये ओल्ड टैक्स रेजिम में भी है? नहीं, ये छूट आपको सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही मिलेगी, जिसमें आपको एटीसी वगैरह के तमाम जो बेनिफिट्स होते हैं वो छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन अभी जो इस बार जो टैक्स रिजीम है उसमें ओल्ड और न्यू अभी एग्जिस्ट करते हैं जी। लेकिन अब एक तरह से कहा जाए कि ओल्ड टैक्स रिजीम इररिलेवेंट होती जा रही है जी। Okay, Rajiv, India faces a 9.5% tariff on U.S. goods. Just received this story, while the U.S. imposes just 3% on Indian products. So what is the impact of all this going to be on the Indian stock market? जो मैंने शुरुआत में आपको कहा कि ट्रम्प साहब सारे देशों को निगोशिएशन टेबल पे लाना चाहते हैं, और वो यही काम कर रहे हैं। वो इस डिफरेंस को सामने रख रहे हैं कि हम आपके यहाँ से आने वाले सामान पर इतना टैक्स लगा रहे हैं, आप हमारे यहाँ के सामान पर इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं, ये इम्बैलेंस नहीं चलेगा। वो इस बात को कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो मैंने पॉइंट रखा कि कोई इम्बैलेंस अगर है तो उसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन्स रहे हैं। आप जैसे भारत की बात करें तो हमारा एक तर्क रहा है कि जो हमारे घरेलू इंडस्ट्रीज हैं, आपको उन्हें कहीं ना कहीं सेफगार्ड करना पड़ेगा, और ये जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस रही हैं, WTO रिजीम भी रहा है जिसमें डेवलपिंग नेशंस को एक हायर टैरिफ लगाने की छूट दी गई। तो इस पूरी व्यवस्था को आप रातों रात अगर आप बदलना चाहते हैं
तो ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, लेकिन जो लोग WTO के सिग्नेटरी हैं, जैसे अमेरिका भी है, तो जो भी नियम कानून है वो तो सब पर लागू होते हैं। देखिए, WTO को तो अमेरिका ने मानना कब से बंद कर दिया है। मतलब इररिलेवेंट कर दिया है उसे। इसमें अमेरिका का भी और चीन का भी बड़ा योगदान है। जी जी। और नोएडा से हमारे श्रोता लीलाधर जी लाइन पे हैं। लीलाधर जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी, सवाल पूछें। सर मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जैसे अभी बीते कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों से FIIs ने लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की निकासी अपनी की है, तो क्या बाजार में, भारतीय बाजार में जो मंदी है, मंदी में जो पैसा निकाला गया है, उसके हिसाब से अगर हम फ्यूचर में देखें तो जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा भारत के पास आ रहा है, तो उसके बेसिस पर क्या ये पॉजिटिव साइन हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय बाजार और उनके निवेशकों के लिए? दूसरा, ट्रम्प साहब ने जो 2 अप्रैल के लिए कुछ बातें बताई हैं, उसके बेसिस पर अभी पिछले हफ्ते का हिसाब देखें तो मार्केट ने इतनी ज्यादा घबराहट उनके इस डिसीजन पर नहीं लिया है। तो क्या आने वाले दिनों में मार्केट का पॉजिटिव रूप हमें जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है क्या? जी, लीलाधर जी, ट्रम्प साहब हर रोज कुछ न कुछ बयान देते हैं, और जब वो एक दिन कुछ बोल रहे होते हैं, कोई रिपोर्टर उनसे पूछता है कि पिछले दिन आपने ऐसा कहा था, तो वो बोल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस बात को ट्रम्प साहब क्या किस डिसीजन पे आगे पहुंचेंगे, इसे 2 अप्रैल तक के लिए छोड़ देते हैं। आज की तारीख में खुद उन्हें भी शायद नहीं मालूम होगा कि वो 2 अप्रैल को क्या करने वाले हैं। और रही बात FIIs की, तो हाँ, ये बात सही है कि FIIs ने बिकवाली की है, उन्हें भारत में फायदा हो रहा था, और अपने देश यानी जो उनका नेटिव कंट्री है, खास करके अमेरिका, हर FII का जरूरी नहीं कि अमेरिका ही हो, लेकिन अधिकांशतः का होता है, उन्हें अपने बाजार में थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिवनेस लगा, तो इसलिए जहां भी उन्हें प्रॉफिट दिख रहा था वहां से पैसा निकाल करके वो ले गए। आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि भारत की कंपनियां आगे बढ़ेंगी, भारत की इकॉनमी आगे बढ़ेगी, और अंततः आपके शेयर बाजार की चाल जो है वो आपकी अपनी इकॉनमी पे और आपकी कंपनियों की कमाई पे डिपेंड करेगी। उस पर भरोसा रखिए और अच्छे मौके पर आप अच्छा निवेश करिए, कंपनियां सावधानी से चुनिए। Moving on, the US markets rose yesterday, rebounding from early declines after Federal Reserve Chair Jeremy Powell said the economy was in a good place, but uncertainty about US trade policy led to Wall Street's biggest weekly decline in months. The Dow Jones Industrial Average rose 223 points or 0.5% to 42,802. The S&P 500 gained 32 points or 0.6% to 5,770. And the Nasdaq Composite gained 127 points or 0.7% to 18,196. For the week, the S&P 500 declined 3.1%, the Nasdaq declined 3.5%, and the Dow fell 2.4%. S&P 500 finished with its biggest weekly loss since September. The S&P 500 and the Nasdaq also registered their 3rd straight week of declines, the longest losing streak since mid-July last year. और थाने से हमारे श्रोता गुरुनाथ जी लाइन पे हैं। गुरुनाथ जी, बहुत ही संक्षेप में अपना सवाल पूछें। जी जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये जो ट्रेड और चल रहा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट कुछ कभी कुछ बोलते, टेरिफ कभी कम करते, कभी ज्यादा करते, कभी रोक देते, तो इसका मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे इकोनॉमी और शेयर मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा ग्लोबल? जी, पहले सेटल होने देते हैं कि मतलब वो फाइनली कहाँ जाकर के रुकते हैं, तो तब तक तो अनिश्चितता रहेगी। जी। Also, the US President Donald Trump has threatened Canada with new tariffs on its lumber and dairy products. Quickly, within 10 seconds, what's your outlook for the coming week? देखिए, अभी मार्केट ने थोड़ा सा रिबाउंड देना शुरू किया है, लेकिन इसको लेकर के अभी एकदम आश्वस्त हो जाना ठीक नहीं होगा कि हाँ, बाजार ने अपना एक बॉटम बना लिया है। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। राजीव जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। And before we close the headlines once again, India is advancing towards women-led development with the power of Indian women now being acknowledged globally, says the Prime Minister. After 3 weeks of decline, domestic markets register biggest weekly gain in 2025, and the US markets rise after Fed chairman says economy is in a good shape.
That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.